हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आपके साथ अपने पार्ट 12 वीडियो लेकर के सेम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन दिस पार्ट you will study the some other type of the concept of the redox reactions. In my part 11 video you studied and you came to know about the oxidation and reduction reactions, that is the redox reactions, on the classical concept. But in this video you will study the electronic concept of redox reaction. Electronic concept, actually it is not just a new one for you. This concept you have already studied in your previous class, that is in 9th class, in your chapter when you studied the chapter atoms and molecules. So this electronic concept of redox reaction is basically depends on the loss of electrons and the gains of electrons. Electrons का जाना from some element और electrons का आ जाना into the outermost shell, that is known as the valence shell of an element. That means you can say the loss of electrons from an element of its outermost shell or the gain of electron into its valence shell or outermost shell. So this electronic concept basically depends on the loss of electrons and the gain of electrons in the valence shell of an element. So before to know what is this actually phenomena is, वास्तव में ये है क्या, आइए मैं आपको आपके 9th क्लास के एक छोटे से टॉपिक की ओर ले चलता हूँ. अगेन द सेम टॉपिक, वैलेंसी, and you already know it that valency is the combining capacity of an element or atom of an element. Why these atom combine? So I told you earlier, मैंने आपको बताया था पहले, these atoms combine to become stable. ये atoms स्टेबल होने के लिए और टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आइदर लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट इन इट्स वैलेंस शेल. सो आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, either they changed into positive ion or changed into negative ion, which are also known as the cation or anion. So then you have studied the formation of the chemical formula. So if you are told to write the chemical formula of sodium oxide, then how will you write it? Recall it. आपसे कहा जाता है कि आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फ्रेम कीजिए, बनाइए. तो आई हैव टोल्ड यू सोडियम क्लोराइड इन 9th क्लास. सोडियम, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na and the chloride, that means chlorine, एलिमेंट इज क्लोरीन. देन आप फिर क्या करते हैं, देन यू राइट द वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट.
You know that the valency of sodium is 1 and chlorine is also of 1. Then you cross multiply it, and if the valency is same, then the formula becomes, chemical formula becomes NaCl. सेम आपसे कहा जाए राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड, द सेम पैटर्न you follow. Mg and oxygen, oxide, that is the ion from the oxygen. Then you write the valency +2 and oxygen +2. Cross multiply the valencies and you get the formula MgO because the valencies are same, numbers are same. आखिरकार ये होता कैसे है? ये इसलिए होता है because just a minute I rub it. To combine atom, to combine either lose or gains the electrons. Look, in this case this is sodium metal, atom of a sodium metal, and its electronic configuration is 281. ये सब आप पहले से जानते हैं. If it want to be stable, अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना है तो इसके आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में either it will have either it will lose one electron or to gain, either it will lose one electron or it can gain 7 electron. So what is easy? किसमें कम एनर्जी कंज्यूम होगी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए. सो व्हेन इट लूजेस इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देन इट बिकम्स Na. Now the electronic configuration is 2,8. Now it is stable. Its electronic configuration is stable because outermost shell, जो सबसे बाहरी वैलेंस शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट इस प्रोसेस में इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ. पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स. दोनों सेम होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स. अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास में है, 2 और 8 10. बट प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए, प्रोटॉन्स आर द सेम, 11 प्रोटॉन. सो इस पर क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. प्रोटॉन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया विच इज शोन बाय द प्लस साइन, पॉजिटिव साइन. सो नाउ इट बिकम्स सोडियम कैटायंस. ठीक. अगेन क्लोरीन, केस विथ क्लोरीन, Cl 17 atomic number and its electronic configuration is 287. What is easy? अगर इसको अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, 8 करना है, या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. अगेन व्हाट इज इजी? एनर्जी किसमें कंज्यूम कम होगी? गेन करने में. जैसे इसको किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2,8,8. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके बैलेंस शेल में. अब लेके इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है अपने नॉर्मल स्टेट से. इलेक्ट्रॉन मीन्स एक माइनस चार्ज इसके पास बढ़ गया. सो नाउ इट बिकम्स Cl माइनस, नेगेटिव आयन. अगेन प्लस माइनस दोनों में प्लस, देन द कंपाउंड इज फॉर्म Na plus Cl minus or NaCl. So in this way the atoms of sodium and chlorine becomes stable in a compound form. Now this compound is neutral. ये एक ionic compound है but it is neutral because the same charges, that means
वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. सो कंपाउंड इज न्यूट्रल एंड दिस कंपाउंड इज स्टेबल इन द कंपैरिजन ऑफ देन दैट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, बिकॉज ये भी स्टेबल नहीं थे. इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम था. सो इन दिस वे the atoms of the elements either loses the electrons or gains the electrons. Clear? So इसी से कुछ रिलेटेड है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ redox reactions. Is it clear? So what is the oxidation? Oxidation is a process which involve loss of electrons. ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है. एंड व्हाट इज द रिडक्शन? अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक ऐसा प्रोसेस है रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, किसी एटम एलिमेंट के एटम में. अब यहाँ पर आई हैव रिटन एन एग्जांपल 4Na plus O2 forming the sodium oxide Na2O. This reaction is balanced. हुआ क्या इसमें वास्तव में? देखिए, if you want to react sodium with oxygen, so ऐसा करने के लिए होगा क्या? क्योंकि सोडियम इसके साथ तभी रिएक्ट कर सकता है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, Na प्लस, और क्या बना दे, सोडियम कैटायन, और अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया. बिकॉज सोडियम चेंज टू सोडियम आयन बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. एंड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ ये हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले करके किसमें चेंज हो गया? O2-, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो 2 नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा हो गए. नाउ इट चेंज इनटू ऑक्साइड आयन. सो इट gains 2 electrons plus 2 electrons and now it changes to O2-. Is it clear? इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, that is it is being reduced. यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ और सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ. So this reaction is actually an example of redox reaction. ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से 4Na plus O2, it forms 2Na2O, sodium oxide. and सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So this process is oxidation. Sodium is oxidized to sodium ion and ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को भी इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन. सो इन द सेम कंपाउंड which is forming here as a product, जो कि प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, इसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ये थोड़े से अलग हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, बिकॉज अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ ऐसा लगता है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन. यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं. Because what is the oxidation according to classical concept? क्या है classical concept? When oxygen is added, जब ऑक्सीजन एडेड होता है, that process is known as the oxidation.
तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिएक्शन में जस्ट देयर इज ओनली ऑक्सीडेशन, बट आई हैव टोल्ड यू इन पार्ट 11 वीडियो व्हाट देयर इज नो रिएक्शन अकर अलोन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसा कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है जहां पर अकेला रिडॉक्स ऑक्सीडेशन हो रहा हो या सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक का आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और वास्तव में ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो वास्तव में है ये 2Na2, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, so in this way this example is also seems like an oxidation, but it is an example of redox reaction when electrons are written here a phenomena or process which involve loss of electrons, it is known as the oxidation, and a process which involves gain of electrons is known as the what, reduction. Screenshot, you can take the screenshot. Yes, next example. Same here, I have written here sodium has changed into sodium ion by loss of one electron, that is the oxidized, and oxygen has changed into oxide ion O2 minus in Na2, इसमें इस compound में by gain of 2 electrons it is being reduced, it is reduced. So this is an example of redox reaction on the basis of electronic concept, either by the loss of electrons or by the gain of electrons. If there is the loss of electrons, the process is oxidation, and if there is the gain of electron, that process is reduction. Next example, take the screenshot. Although this is an example of combination reaction, है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स तो है ही, बट ये साथ साथ में किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन आई रब इट। Very popular example, Mg plus O2, what they forms, MgO, but the reaction is not balanced yet, so 2MgO and 2Mg. Clear? Now it is balanced reaction. What is actually happening here? Mg आपको याद होगा, atomic number is 12, configuration is 282. So what it do? It lost its 2 electron. That means it is oxidized. Loss of electrons. यहाँ पे क्या होगा? Loss of electrons. और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा Mg2 plus oxygen. I have just told you. Oxygen 8 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए प्लस, सो नाउ इट विल चेंज इनटू ऑक्साइड एनायन 2 माइनस। इज क्लियर? सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ऑक्सीजन के केस में, और मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन एंड दिस इज oxidation. Is it clear? So this is also an example of redox reaction, although it also seems like an oxidation reaction. ये भी एक oxidation reaction की तरह लग रहा है, because oxygen is being added to magnesium, but ऐसा नहीं है। I have told you if one is being oxidized, then second reactant is being reduced. जरूर ऐसा होगा कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। सो और यू कैन राइट इट
what happens here? Mg 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए हैं, एंड ऑक्सीजन it gains 2 electrons plus 2 electrons. Now it change this one. So this is an example of, this is oxidized. Magnesium is oxidized by the loss of electrons, and oxygen is reduced by the gain of electrons. Is it clear? Actually what is this? 2 Mg 2 plus O 2 minus. Is it clear? So this is also an example of redox reaction. It is also an example of redox, because both processes are going on in the same reaction, redox, and also ये क्या है? It is also an example of combination reaction. यहाँ भी combination है, combination reaction. Take the screenshot. Now we move on one more example. Yes, one more example is Fe plus S. Third example is iron plus sulfur. What they will form? देखिए यहाँ भी केस क्या है? And the valency of iron is plus 2. That means it loses its 2 electrons, so it becomes into positive ion plus 2 electrons. And in the case of sulfur भी आपको याद होगा, sulfur atomic number is 16, 2, 8, 6 हैं, 2 चाहिए, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं? It gains 2 electrons, जो किसने लूज किया यहाँ से, and now it becomes S2 minus. Clear? So now it combines with each other. Formula क्या होगा इसका? FeS, iron sulfide बनेगा, FeS, iron sulfide. Clear? So FeS plus 2 valencies की minus 2 valencies की cross multiply. What is the chemical formula? FeS. So they combine. But वास्तव में हुआ क्या है यहाँ पर? वास्तव में क्या हुआ है यहाँ पर? It is being oxidized. Why? Because here is the loss of electrons, and it is reduced because it gains 2 electrons. So this is also an example of redox reaction. Plus what is this? Combination reaction is also. This is the redox reaction, and it is also an example of combination reaction. How? इस केस में यहाँ क्या हो रहा है? Fe is being oxidized into FeS. Why? Loss of electrons. यहाँ पे loss of electrons हो रहा है, and it is the process of oxidation. And in the case of sulfur, it is being reduced because gain of electrons. So it is the process reduction. So this is also an example of redox reaction. तभी तो ये कंबाइन करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं होगा या गेन नहीं होगा तो आपस में कैसे ये कंबाइन कर पाएंगे? सो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे ये पहले अपने चेंज हो रहे हैं आयंस में, और अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, एंड दे फॉर्म्स द कंपाउंड आयरन सल्फाइड. क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट. One more example. Zn plus CuSO4. Fourth example. तो ऐसा ना लगे आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी हो रहे हैं दे आर ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नो,
दे सीम्स लाइक, वो लगते तो हैं, दैट इज रिएक्शन इज ओनली इट्स ऑक्सीडेशन, बट एक्चुअली नो रिएक्शन इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. If there is oxidation, then there must be reduction. Is it clear? Oxidation or reduction cannot occur alone. So fourth example, Zn plus CuSO4. आपको याद आ चुका होगा ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? ZnSO4 प्लस Cu. कॉपर अलग निकल जाएगा. इस केस में क्या हुआ है, अब यहां भी देखते हैं, समझते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड विच इज बीइंग रिड्यूस्ड. Zn वास्तव में क्या है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बिकम्स Zn2 प्लस. इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, बिकॉज इट लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. Zn किस में चेंज हो गया? Zn2 प्लस में. और Cu के केस में क्या हो रहा है? कॉपर आप अगर कॉपर को देखें, इसमें कॉपर को हटाया है, तो आपको याद होगा कॉपर की वैलेंसी भी 2 होती है, बिकॉज सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी है? 2. जब ये इसको हटाएगा तो वास्तव में क्या बचेगा? Cu2 प्लस, ठीक है. लेकिन इसके साथ ऐड करने के लिए ये किस में चेंज हो जाएगा? अब Cu. अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है. अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कहीं से, तो इसके ये जो चार्जेस हैं न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा? Cu मेटल में. दैट मीन्स Cu को क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं एंड इट विल चेंज इनटू Cu2 प्लस, और ये चेंज हो गया Cu मेटल में. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये हुआ है, तो इट इज रिड्यूस्ड. So Zn is oxidized, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Cu का क्या हो रहा है? Cu के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. एंड ओवरऑल क्या है यहाँ पर? ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स, और साथ साथ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक बार और समझिए इसको, आप देख सकते हैं. अगर Zn को SO4 के साथ कंबाइन करना है, Zn को अगर SO4 के साथ कंबाइन करना है, और इसके पास क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, CuSO4 आयंस में चेंज हो चुका है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, आपको याद होगा, दिस इज द सॉलिड मेटल. तो जो एक्वस सॉल्यूशन है अपने आयंस में चेंज हो चुका है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस. अब देखिए, अगर इसके साथ इसको ऐड होना है तो क्या इसके पास में 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं होने चाहिए? इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तब भी 2 नेगेटिव को ये न्यूट्रलाइज करके इसके साथ ये ऐड हो पाएगा, कंबाइन हो पाएगा. सो दैट मीन्स देन इट विल बिकम ZnSO4. समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना. एंड अब Cu को क्या है? Cu के पास 2 प्लस चार्ज है. सो मैंने बताया यहाँ पे भी आपको, इसके साथ क्या होगा कि Cu को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और इट विल चेंज इनटू एलिमेंट Cu. इज इट क्लियर? सो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज बीइंग occur happening, and this is an example of displacement reaction along with the redox reaction. So take the screenshot of this one also.
Once again, in all of these four examples I have explained you completely. If an atom of the element combine to some other, want to combine with some other element or the molecule, either it will lose the electron or it will gain the electron. या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, और it will gain the electron into its outermost shell, that is known as the valence shell, and will form the positive ion and the negative ion, and positive and negative ion combine with each other and forms a new product. So on the basis of the loss and the gain of electron, this is the new concept, electronic concept of oxidation and reduction. If there is the loss of electrons, then this phenomena is oxidation, and if there is the gain of electron by the atom of an element, then this phenomena is reduction. So ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ये उन रिएक्शंस को समझाने में यूज़फुल है जो लगते हैं जैसे देयर इज़ ओनली ऑक्सीडेशन इज़ बीइंग हैपनिंग, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है वहाँ पर, बट इन एक्चुअल there is no redox reaction, there is no reaction where oxidation or reduction occur alone, जहाँ पे दोनों अकेले होते हों. So इन सभी एग्जांपल्स में हमने यही देखा. तो अब आप इसके बेस पर you can clearly identify which one is being oxidized and which one is being reduced. So this was the whole, this is the whole about the electronic concept of redox reactions. Revise it, watch it, observe it minutely and carefully. तब तक के लिए thank you, best of luck, like it and subscribe.